मगरबी बंगाल में असेंबली इलेक्शन करीब आते ही तमाम पार्टियां तैयारी में जुट गई है। लेकिन इस बार पहली दफा ये देखा जा रहा है कि तृणमूल का मुकाबला तृणमूल से हो रहा है। कुल्टी के एक प्रेस मीट के दौरान ग्रुपिज्म खुलकर दिखाई दी। अगर जिला लीडरान इस मामला को संजीदा नहीं लेते हैं तो खदशा है कि तृणमूल को काफी नुकसान का सामना हो सकता है। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदा के साथ देखते हैं। এবং নিজের নিজের স্বাস্থ্য কার্ড, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী এই ধরনের প্রত্যেকটা স্কিমের আপনারা লাভ তুলুন, এটাই বলার জন্য এসেছি। এবং সাংবাদিকদের মাধ্যম দিয়ে আমরা কুলটি বিধানসভা অঞ্চলের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আমাদের এই উৎকর্ষ বাংলা, আমাদের বঙ্গধ্বনি যাত্রা আজ থেকেই শুরু হয়ে গেল। আগামীকাল থেকে পুরো টিম কুলটির বিভিন্ন ব্লকে, বিভিন্ন ওয়ার্ডে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষের আমরা অভিযোগ শুনব। उसको भी बनाया जाता है। इससे हमको तकलीफ हुआ, मतलब कि आप मुस्लिम माइनॉरिटी हो उसको आप वोट बैंक बना कर तब रखते हैं, मगर अगर कोई मुस्लिम लीडर अगर कोई लीड करता है तो उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों, वाई? तो आप लोग अल्पसंख्यक जो जिला का जो सभापति उनसे ये शिकायत करेंगे? एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम ऊपर महल तक खबर करेंगे। जब तक इस पद में है हम अपना देखिए, जब हम संगठन कर सकते हैं, वोट दिला सकते हैं, मीटिंग में आदमी ला सकते हैं, तो अपना अगर इज्जत के लिए, प्रेस्टीज के लिए आपको जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ पर मैं जाऊँगा। आपका परिचय? मैं मोहम्मद अफजल अंसारी, माइनॉरिटी सेल कुल्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट। হলো ওই আমজাদ আনসারি বলছে যে মাইনরিটি মুসলিমদের হামেশা ভোট ব্যাংকের ইস্তেমাল করা হয়, আমাদেরকে কোনো রকমের সম্মান দেওয়া হয় না। এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? উনি ছিলেন মিমের একজন ক্যান্ডিডেট। আপনারা জানেন যে উনি মিম থেকে জাস্ট কয়েকদিন আগে এই তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের যারা সংখ্যালঘু ভোট আছে ওনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেন। কুলটি বিধানসভা অঞ্চলে যে সমস্ত মুসলিম ভোটাররা আছেন তারা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেন, কারণ উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু ভোটারদের জন্য যে পরিমাণ কাজ করেছে তাতে কিছু করা যায় না। আজকে যিনি এখানে এই ধরনের কোদল করার চেষ্টা করলো, আমার মনে হয় যে উনি মিমদের কাছ থেকে এই ধরনের চক্রান্ত করার চেষ্টা করে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এই চক্রান্ত থেকে হয় আমজাদকে বিরত থাকতে হবে, নয় আপনার আমজাদকে আগামী দিনে এইভাবে রাজনীতি করতে এখানে দেওয়া হবে না। এটা একদম পরিষ্কার ভাষার কথা, কেউ কাউকে এখানে গার্ড করে থাকে না। এই বিষয়ে পার্টি কি পদক্ষেপ নেবে? পার্টির পদক্ষেপ, বিধায়ক ছিলেন, ব্লক প্রেসিডেন্টের সামনে ঘটনা ঘটেছে, ব্লক প্রেসিডেন্ট এটার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে দেখছি। আমরা আমাদের যুব তরফ থেকে উপরকে জানাবো। আমরা আরও জিতেন্দ্র তেওয়ারি আমাদের জেলার প্রেসিডেন্ট আছে, ওনাকে জানাবো। কারণ এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে একজন আমজাদকেও আছে, আক্তার হোসেনকেও করেছে, কি করেছে আমাদের জানা নেই। তবে যারা মিম থেকে এসে ভাবছে যে দুদিন আগে মিম করার পরে এখানে এসে কুলটির রাজনীতিতে ছড়ি ঘোরাবে, কোনো মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। এটা কুলটি, ওকে ভাবতে হবে ভালো। लोगों को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो, इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 70 नंबर वार्ड, 66 नंबर वार्ड, आप लोग कब से बैठे हुए हैं? हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पे कैंप लगा के बैठे हुए हैं। 8 बजे कैंप लगा बैठे, लगभग कितने लोगों ने यहाँ फॉर्म फिलअप किए? यहाँ लगभग हम लोग 2,500 से 3,000 लोगों का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। आने वाला 24 तारीख को यहाँ पे फिर लगने वाला, उसमें भी आप लोग इस तरह कैंप लगाएंगे? आने वाला दिन 24 तारीख, 12 जनवरी और 28 जनवरी, ये तीनों डेट में हम लोग यहाँ पे कैंप लगा के रहेंगे ताकि आम जनता को कोई भी तरह कोई भी परेशानी ना हो। तो आप लोग जो कैंप लगाए, किसके नेतृत्व में कैंप लगाए हैं? ये हम लोग माननीय मेयर साहब, माननीय एमएलए साहब, माननीय मंत्री साहब, इन लोगों का निर्देश है। इनके वजह से हम लोग लगाए हैं कि ताकि आम जनता को कोई भी तरह का परेशानी ना हो। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे बोरो टेन के दिवेंदु भगत जी का निर्देश है कि लोगों को परेशानी ना हो। आपका परिचय? मैं अमित कुमार यादव, कुल्टी ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी। आसनसोल के बिजली विभाग में आज आग लग गई। बड़ी मुशक्कतों के बाद आग में काबू पाया गया। आइए जानते हैं कि ये वाकया कैसे रोनुमा हुआ। কিন্তু বোরিং এর জল তো জল হলে হলো। থ্যাংক ইউ দাদা। জমে আছে নোংরা
थोड़ा सा वो आग लगी है। तो कैसे लगे थे? वो थोड़ा वहाँ पर कचरा था, वही थोड़ा साफ करने के लिए सांप को यहाँ पर डर रहता है, लेबर को काम वाम करता है, तो इसीलिए वो लग गया था। तो अभी तो बुझ गया है, आप तो देख ही रहे हैं। हाँ, नहीं, आग लगने का कारण कुछ समझ में आया? आग लगने कोई सफाई था, वो सफाई करने के लिए वो थोड़ा कचरा था, इसलिए डर के लिए थोड़ा सा तो सामने ही कि ये साफ हो जाए कचरा, इसलिए वहाँ पर जलाए थे, तो वो बहुत जल्दी फैल गया। अच्छा, मैंने कचरा साफ करने के लिए जलाया गया था? कचरा नहीं, सूखा हुआ घास था। हाँ। तो सूखा घास तो सांप ऊपर डर रहता है, लेबर लोग कोई माल निकाल रहा था, तो ये चाकी वो कुछ ना ऐसा रह जाए या माल इसी से निकल जाए। वो स्टिक वाला पोल है, वो हम देख सकते हैं, फिर पोल ही निकल, उसके ऊपर ही पूरा घास का पूरा बरसात के बाद जो घास जम जाता है वो घास जमा होता है, उसी के लिए ऊपर का ही जो ताकि वो इजीली निकल जाए, कोई हाथ से निकाले ना, कोई सांप ना रह जाए, तो इसीलिए ऊपर माचिस लगाया गया कि वो जल जाए। तो नीचे पुराना तेल बहुत दिन से पड़ा हुआ कि इतना जल्दी आग पकड़ लिया। तो आप लगाए थे क्या? आप लोग लगाए थे? हाँ, नहीं, आग तो हम ही लगाए थे। आप ही लगाए थे? कुछ समझ में नहीं आया आप लोग को? ऐसा आइडिया नहीं था कि तेल पकड़ सकता है? नहीं था, तो इसीलिए हम तो ऊपर लगाए थे, तो नीचे इतना जल्दी पकड़ लिया, वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर तो अभी पावर सप्लाई आप लोग यहाँ से माने देते हैं, तो अभी क्या पावर पूरा कट किया हुआ है ना? नहीं, यहाँ पर पावर सप्लाई नहीं है। ये मेरा पीछे का एरिया स्क्रैप एरिया है, यहाँ पर बस पुराना स्क्रैप लोहा है, और भी यहाँ पर कुछ है नहीं। आपको क्या नाम है? मेरा नाम महेश्वर मंडल। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक एडीएम खुर्शीद अली कादरी को आज अलविदाइया दिया गया। मुझे याद है कि जब मेरा पोस्टिंग हुआ था यहाँ पर 3-3.5 साल पहले, तो उस टाइम मेरे कदम यहाँ पर नहीं चल रहे थे। मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लग रहा था कि कॉरपोरेशन में पता नहीं क्या हो रहा है, जिस हिसाब से फीडबैक मिलता है, क्योंकि हम यूजुअली फीडबैक्स पे चलते हैं। कई सारे ऑफिसर्स ने मुझे फ़ोन किया कि अगर आप चेंज करना चाह कोशिश करो, चेंज हो जाए। तो मैं बिल्कुल वो अपनी हिम्मत के साथ मैंने कहा चलो देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो उस टाइम मेयर सर थे यहाँ पर, तो इनको मैं फ़ोन भी करवाया डायरेक्टली कि वो ऊपर बोले कि मुझे यहाँ न लें, लेकिन इन्होंने फ़ोन भी किया था, वो मुझे इन्फॉर्मेशन है, और जिनसे बात हो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस ऑफिसर को थोड़ा ट्राई कीजिए, देखते हैं क्या हो। तो वो जो वक्त था जब मेरे कदम यहाँ नहीं चल रहे थे, आज वही एक वक्त है जब मुझे लग रहा है कि यहाँ से कदम जो निकलना बाहर है, ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इसका एक ये रीज़न है कि ये जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पर हमारे मेंबर्स बैठे हैं, आप हैं। मैं हमेशा आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अपना घर मानता था, आपको अपनी फैमिली मानता था। मैंने बहुत कोशिश की, जितनी मेरी कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंस है, कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। कुछ इश्यूज जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए, कुछ इश्यूज जो हैं जो अभी भी इम्प्रूवमेंट के स्टेज पे जा रहे हैं। लेकिन एक बात ये है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है एक उम्दा ऑर्गेनाइजेशन है, एक वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं मानता हूँ। यहाँ पर जब हमारा सफाई कर्मचारी बेचारा सवेरे 6 बजे जब वो सफाई करने के लिए जाता है, उसको कोई नहीं देखता, बिकॉज हम सोते रहते हैं, तो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई रिकग्नाइज नहीं करता। उसके पास 6 बजे से 8 बजे तक वो सारा सिटी क्लीन करता है। हमारा 1 दिन 2 दिन अगर यहाँ सफाई नहीं होगा तो शायद ये सारी सिटी चौक हो जाएगी। तो उनको वो ड्यू रिकग्निशन नहीं मिलता है, जो हमारा हमेशा मेरे दिल में रहा है कि नहीं, इनको वो ड्यू रिकग्निशन मिलना चाहिए। अगर आप देखेंगे कोविड में उन्होंने कितना काम किया कि हम अपने घरों में बैठे थे या दूर से फ़ोन पे बात करते थे, वो फील्ड में थे और वो फील्ड में काम करते थे। हमारा यहाँ पर इंजीनियरिंग सेल है, इनको मैं बधाई देता हूँ। हमने जितने भी काम लिए थे इस बोर्ड में, हमने 100% वो कंप्लीट किए। हमारे यहाँ पर कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, कुल्टी वाटर प्रोजेक्ट था, यहाँ पर हमारा स्मार्ट लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम था, हमने यहाँ पर ऑनलाइन जो है ट्रेड लाइसेंस स्टार्ट किए हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट पे इन्होंने बिल्कुल जैसे घर के लिए हम काम करते हैं वैसे इन्होंने काम किया। संडेज हो, सैटरडेज हो, जब ऑफिस बंद रहता था तो हम यहाँ पर इस हॉल में बैठ के डिस्कशन करते थे कि किस तरह से हम इनको इम्प्रूव करें। अब सर्विस डिलीवरी में आप देख लीजिए, कोविड हो या कोविड के बाहर सिचुएशन, चाहे रिलीफ मैनेजमेंट हो, उसमें आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि उतना ड्यू रिकग्निशन नहीं मिलता है, उतना ड्यू एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि जब हम घर जाते हैं हम सेटिस्फाइड होते हैं। हमें तो प्राइज नहीं मिलता है, अवार्ड नहीं मिलता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम घर जाते हैं हम आराम से चैन की नींद सो सकते हैं कि जैसे मैंने जो मेरी कॉम्पिटेंस थी, कैपेसिटी थी, मैंने वो यूज़ की
लोगों के फायदे के लिए। तो आज जो है हम फेयरवेल है, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, दार्जिलिंग जा रहा हूँ, आना जाना रहता है, टूरिस्ट प्लेस है, कोई भी कभी भी जब भी है मैं वहाँ पर हूँ, आप आ सकते हैं मेरे पास। आई फील कि मेरा कोई फैमिली मेम्बर जो है वहाँ पर मेरे पास आया है। दूसरी ये बात है कि अभी भी इस आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। अभी जो है हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, लेकिन अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हमें इसको करना है। हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं, वो भी मेरे बैचमेट ही हैं, काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये और आगे बढ़े, बेहतर जो है और हो जाए। मैं एक चीज़ फिर से बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे चेयरमैन सर बिल्कुल गार्जियन की तरह यहाँ पर आई कैन नॉट एक्सप्रेस दोज सेंटिमेंट्स। मैं वो सेंटिमेंट्स जो है मैं नहीं बोल सकता हूँ किस तरह से किन इश्यूज पे इन्होंने मुझे बिल्कुल जो है ना शील्ड, आप करो ये काम, मैं देखता हूँ। हमारे यहाँ पर जो ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, इन्होंने खुद कितने इश्यूज सॉर्ट आउट किए हैं जहाँ पर हमारा पब्लिक कंसल्टेशन हो या कुछ हो। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम अक्सर ये भूल जाते हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन वाइज, फंड्स की लिमिटेशन है, उसमें इतने लोगों की डिमांड है, उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आप सबको बधाई, हम यहाँ पर जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको बधाई है कि हम इतना बड़ा कॉर्पोरेशन जो है सही से चला रहे हैं। मैं आपका फिर से धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुझे बहुत कोऑपरेट किया यहाँ पर। मैं 3 साल 3.5 साल ये हमारे सर्विस का पार्ट है। यहाँ पर तो 2 साल 1.5 साल में ही लोग जो है उनका ट्रांसफ़र होता है, एटलीस्ट मुझे 3 साल 3.5 साल दिए यहाँ पर काम करने के लिए। और इससे मैं आप लोगों का जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी था इन चीज़ों